Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class ninth, and here we are discussing about MS Excel. Okay, so let's get started. So in my previous video, I discussed about the introduction about the MS Excel, in which I discussed why we use MS Excel and what actually this MS Excel interface is. So let's revise this section again here, beta. So here you can see the interface about this software. If you want to open this MS Excel, you just need to go the office button, start button, and you have to search it out MS Microsoft Office. Okay, and here you will get Microsoft Office Excel 2007. Okay, simply you just double click on it and you can get it. तो बेटा यहाँ पर हमें क्या देखना है कि इस MS Excel इंटरफेस का एक सिंपल इंट्रोडक्शन वापस से हम देखते हैं. सिंपल हम MS Excel यूज क्यों करते हैं? टू स्टोर आवर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट as well as we can analysis our data. Okay, we have different kind of formula with different kind of tools which help us to analysis our data if our data present in MS Excel. Okay, so we can store n number of information in the form of table in MS Excel. Clear? So here let's see the interface. Here you can see in above ABCD is present here. This is known as column, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on, it is present here as a row. Okay, so column and there are row. When I click on a specific cell, right, you can see in the left side G8 is present. What is actually G8? So G8 shows here the cell name. Suppose if I click on here, so it is written K7. What is K7? K here present a column name and 7 present a row name. So in this is a name box. In this name box it shows K7. Okay, so column name पहले आएगा और row name बाद में आएगा. ठीक है. Now similarly in this Excel sheet, right, or in this workbook, or okay, so one more thing here on the top side, in the top end you can see this is in a title bar, the book 1 is written. Okay, so by default there is a 3 seat present in one book. Okay, तो बेटा यहाँ पे कितनी seats हैं by default? 3 seats हैं, right? Seat number 1, seat number 2 and seat number 3. We can add more seat here using the shortcut key shift plus F11. Okay, and many more things we can do here. Now let's understand one by one. So here with the help of example I can show you how we use MS Excel. Okay, so let's start to write some information here to store the student record or any employee record. Let's see, I'm going to store employee information. Okay, so first of all I'm going to write employee ID. You can use capital case, employee ID, the employee name, employee salary. Okay, and this is the information. If I want to calculate HRA, DA, TA, you can calculate it. And then after that, this is monthly salary, MS. And after that you can calculate annual salary, AS. Okay, so this is my columns. I want to store my record here. ID suppose 101 to 102. I don't want to repeat 103, 104, 105 and so on. I just want to use the utility of MS Excel. Just shift हमने क्या किया, select किया इसको और यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा point मिल रहा है. You just select, drag and drop. You can see the number of record will come automatically. Right? You can use this.
Now similarly, employee name, suppose Amit, Ravi, Shiv, right? Vidhan, Neha, Shivam, Sanjay, Roli, right? Many names we can store here. Suppose Poonam and Riya, right? Similarly, here we can add the salary here. Now salary, how to enter the salary? Suppose 25,000, right? 20,000, 10,000, 15,000, right? These are my salary, 15,000. और if I want to, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से, we can change the size, right? These are my record, employee name, employee salary, right? HRA. Now suppose 30,000, 25,000 again, ठीक है? Suppose 12,000, okay, फिर 18,000, maybe 50,000 again, and here we are suppose 5,000, maybe the salary. I want to calculate the HRA. The HRA will be the suppose 15% of the basic salary. So how you calculate it? Equal to, just put it equal to, I'm going to use some formula here, equal to, and 15% of 25,000 salary. Okay, just click it here and multiply 15%. 15% means 15 divided by 100, and when you calculate it you will get 0.15. Okay, 15 divided by 100 and enter it. So you will get the 15% annual salary. I don't want to repeat this step again, to just drag here and drop these things. See, automatically the output will come, right? See, automatically the output will come. Similarly, suppose HRA is my, I can put it here also. Suppose HRA is my 15%. I put it HRA is 15%, right? Similarly, DA is my 10% or 18%. DA is 18%, recurring allowance. These are the allowances. Okay. TA, traveling allowance, suppose 5%. Okay. And monthly salary will be the addition of the salary, and then these are the merge and center. I can put it here, value. Okay. Now 18% of DA, ये डीए किसका निकलेगा बेटा? इस सैलरी का, ठीक है, सैलरी का, यानी 25,000 जो सैलरी है उसका 18% क्या होगा? डीए होगा, डिक्रीजिंग अलाउंस. तो इक्वल टू, वी कैन पुट सैलरी पे क्लिक करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई 18%. 18% मतलब 18 डिवाइड बाई 100. 18 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा आपको वैल्यू? चलिए देख लेते हैं पहले क्या आता है. अगर हमने लिखा 18 इक्वल टू ब्रैकेट 18, सॉरी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. अगर मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट 18 डिवाइड बाई 100 and then enter. So you will get 0.18. Okay na? So I can multiply this number here also, equal to bracket 25,000. Just click it, multiply 0.18, 18%, and then enter. You will get DA also, and just drag and drop. I don't want to repeat this step again, so just drag and drop. Okay. Similarly, 5% of TA equal to bracket
सैलरी मल्टीप्लाई 15%, 0.15, sorry 5% na, it is 15%, but 5% means 0.05. This is my 5%. Enter it. I don't want to repeat this step again, so I just need to drag and drop. Sorry, drag and drop. Now it is coming. Now after that, I want to calculate the monthly salary. Okay, so just click and putting here sum, right? Sum, it is my formula which comes in a list. एक लिस्ट में आपको सबको फॉर्मूला बहुत सारे दे रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे आप एक्सेल का यूज करके आप अपने डेटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ जस्ट पुट द ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द रेंज। दिस इज माय रेंज। I want to calculate here my salary with including the allowances, HRA, DA and TA. Okay beta, just close the bracket and then enter it. When you click here, you can see 34,500. The salary will come. Okay, let's see again. Equal to bracket, equal to sum. Okay, and just bracket and select the range. Range will come from C D5 to G5. What is D5? Now D is a column, 5 is a row. This is this cell known as D5. यहां से लेकर यहां तक यानी कि G5, देखिए आपको G5 दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस सेल का जो रेंज है वो यहां से यहां तक है, एंड देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन you can see the automatic calculation will come. अगेन अब दूसरे रो के लिए आप लिख सकते हैं इक्वल टू सम, ठीक है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ठीक है उसको सिलेक्ट करें यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेल में आपको ऑटो सम यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो यू विल गेट सी ऑटोमेटिकली फॉर्मूला विल देयर 27,600, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको वापस से स्टेप रिपीट नहीं करने। दो तरीके से मैंने दिखाया, एक तो फॉर्मूला आप खुद लिखें या तो ऑटो सम के थ्रू कर दें। अब इसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से आपको ऑलरेडी सब कुछ दिख जाएगा, सारे मंथली सैलरी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको एनुअल सैलरी चाहिए। एनुअल सैलरी के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू ब्रैकेट। याद रखिए कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल टू जरूर लगाना है, इक्वल टू एंड देन ब्रैकेट, अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो। और अगर डिफॉल्ट जो इनबिल्ट फॉर्मूला अगर यूज करना है तो आपको लिस्ट में लिखेंगे इक्वल टू के तुरंत बाद। जैसे कि मैंने सम लिखा था, इक्वल टू के बाद सम आ गया, ठीक है, SUM, देखिए तब यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट फॉर्मूला के बाद आएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इक्वल टू के बाद ब्रैकेट तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैनुअली फॉर्मूला लिखना है, सैलरी मल्टीप्लाई यानी कि जो आपकी मंथली सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका एनुअल सैलरी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, H5, H इज माई कॉलम एंड 5 इज माई रो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 32 से। ओके बेटा, नाउ हियर यू कैन सी 11,04,000 इज माई एनुअल सैलरी। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये सबकी सैलरी निकल के आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए जैसे मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं सबका, ठीक है। किसी स्पेसिफिक रो का कर सकते हैं, सपोज अगर आपको सिर्फ खाली ये करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। नंबर्स का हमेशा राइट अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट का हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, क्लियर। अब इसको अगर आपको टेबलर फॉर्मेट में देना है तो भी आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए बेटा आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हैं इसको लेफ्ट में देना, राइट में देना, आप राइट में लेफ्ट में दे सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं। कॉमा लगाने के बाद ये हैश क्यों दे रहा है, क्योंकि जो हैश इसलिए दे रहा है अगर आपके टेक्स्ट की लेंथ सेल की लेंथ से ज्यादा है तो क्या होगा, आपको
हैश सिंबल देगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक, तो यहाँ पे 11 lakhs, ठीक है, आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं आप, हटाना सकते हो, आप हटा भी सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करिए यहाँ से, और यहाँ से कॉमा को वापस से रिमूव करेंगे, कॉमा आपका हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको अगर यहाँ से क्या मिल सकता है, कोई भी सेल चेंज कर सकते, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है बेटा, ना यहाँ से हमें क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाते हैं क्लियर, ये देखिए फॉर्मेटिंग हट गई यहाँ से। और आपको जो भी फॉर्मेट पेंट, सपोज हमने फॉर्मेट पेंटर लिया, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एंड देन ये देखिए एज इट इज आपका आ गया। इसको राइट साइड में देना है आपको, तो इसको आप राइट साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे राइट में दीजिए। और यहाँ से आप डॉलर सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सी डॉलर लगा सकते हैं आप। क्लियर, ठीक है, नहीं करना है कुछ भी, सिलेक्ट कीजिए अपने कॉलम्स को एंड देन क्लियर, क्लियर ऑल, सॉरी क्लियर फॉर्मेट, राइट, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप इसको जो भी आप फॉर्मेट देना चाहें, सपोज अगर इसका फॉर्मेट देना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए एंड देन सेलेक्ट ऑल। ठीक, राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं इसको आप। अब देखिए, अब इस पूरे को आपको टेलर फॉर्मेट देना है, राइट, तो कैसे देंगे आप बेटा, आप यहाँ सेलेक्ट करिए इसको, और यहाँ पे जाकर बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर, जो हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी है एमएस वर्ड में, वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर हम फॉलो करेंगे फिलहाल अभी अभी के लिए। ठीक है, सिंपल यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब इसका हमें एनालिसिस करना है, तो हम यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं, पहले इसके फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ठीक है, बस तो आपको सारे के सारे ये जो कॉलम्स हैं इसको आपको बोल्ड करने हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे गए हम, सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और साइज इंक्रीज करने के बाद हम गए यहाँ पर, पहले वाले जो कॉलम रोज हैं, हेड जिसको कॉलम बोलेंगे, इसको हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, और बोल्ड करने के बाद बाकी सभी रिकॉर्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है फॉर्मेटिंग के, तो जो भी आप फॉर्मेटिंग लेंगे वो यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एरियल नैरो है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप तो जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए आप ये फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ मिलेगा। क्लियर ना, इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर अब रैपिंग टेक्स्ट है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मर्ज हैं, मर्ज। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेकर मैंने एम्प्लॉइज सैलरी इंफॉर्मेशन, अगर मुझे कुछ इस तरह से एम्प्लॉय डेटा लिखना है तो मैं लिखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डेटा या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, अब एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को मुझे बोल्ड में थोड़ा बड़े में यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या किया, मर्ज किया सारे कंटेंट को, और इसका जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया। अगर आपको कलर चेंज करना है इसका, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे येलो कर सकते हैं आप, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसका कलर चेंज करना है कॉलम का,
तो भी आप यहाँ पे जाके कॉलम का कॉलम चेंज कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो आपका कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट का कलर चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे जाके कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, दिस इज कॉल्ड नोन एज फॉर्मेटिंग। जो भी आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस सेल को हमने क्या किया था, मर्ज एंड सेंटर किया था। ठीक है, यानी कि हम मर्ज सेंटर का मतलब क्या होता है, हम एक सेल, दो सेल या एक से ज्यादा सेल को एक साथ मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं। ठीक है, वी कैन मर्ज मोर देन वन सेल एंड टू बिकम वन। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 सेल है हमारे पास, इसको मर्ज करना है। सेलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हमारे जो सेल होंगे वो, सॉरी यहाँ पे इसको मर्ज करना है, क्लिक करेंगे सारा एंड देन मर्ज। देखिए यहाँ पे एक सेल बन गया आपका। ठीक है, और जो कुछ भी लिखेंगे वो उसको सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज सेंटर पे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज। ठीक है, अगर आपको वापस से अनमर्ज करना है, क्लिक करिए इस पर और यहाँ पे ऑप्शन जाकर अनमर्ज कर दीजिए, तो वापस आपके 4 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पर है, ये देखिए हमारा कट कॉपी पेस्ट ऑलरेडी उसी तरह से है जिस तरह से हमने देखा है। अब इस सीट का नाम हमें चेंज करना है, राइट क्लिक करके हम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम और सीट का नाम सकते हैं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज, ठीक है, यहाँ पर इस सीट में आप एक से ज्यादा सीट ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 सीट आपको मिलता है, यू कैन ऐड मोर देन वन, मोर देन सीट हियर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इन सभी सैलरी को अरेंज करना है, आप चाहते हैं कि जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा वो पहले आवे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट करना है आपको। सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिली, 13 लाख, यानी इसको मिल रही 13,24,800, ये सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद उससे कम यानी कि आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखिए सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कस्टम सॉर्ट सॉर्ट पे जाना है आपको और यहाँ पे सॉर्ट बाई, किससे सॉर्ट करना है आपको, तो मैंने आपने लिखा एनुअल सैलरी से, वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नो हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, हमने हमें क्लिक कर दिया एंड देन ओके। तो आपका देखिए 105 जो नेहा है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। अब आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे लिख सकते हैं 101 और दूसरे वाले पे 102। अब फिर क्या कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके बाकी रेंज आप ला सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करिए एंड देन यहाँ तक आपका 1010। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, किसी भी कॉलम के बेस पर आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि इसको क्या कर, एमएस एक्सेल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है बेटा, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट और यहाँ पर क्या है, ओरिएंटेशन है। जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी पे गए और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो सेल का जो टेक्स्ट है उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, मैंने कहा पहला वाला, ठीक है, एंगल में होना चाहिए। तो देखिए एंगल में आ गया। ठीक है, अब यही फॉर्मेट सबको अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और बाकी सब पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बेटा हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी हम एंगल आप हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वापस से वही चाहिए, यहाँ से अंडू कर सकते हैं। ठीक है, से अंडू पे जाते हैं, एक मिनट, वेट,
अभी हम जाते हैं यहाँ से, अपना जो डेटा है उसको वापस से हम लेके आते हैं। ये देखिए हमारा डेटा वापस से बन गया। अब इसका फायदा देखिए, हमने जो फॉर्मूला लगाया है, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय ऐड करते हैं, 111 हो गया, ठीक है, उसका नाम है अभिषेक, ठीक है। उसकी सैलरी सपोज हमने यहाँ पे हमने क्या दिया, मान लो सैलरी हमने यहाँ पे 35 सैलरी हमने यहाँ पे दे दी। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका जैसे सैलरी हमने एंटर किया, ऑटोमेटिकली उसके सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फिलअप हो गए, ठीक है। फिर से एक बार देखें, जैसे हमने यहाँ पर सैलरी एंटर की और टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिकली सारे हमारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिलअप हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमएस एक्सेल बेटा, you can reduce your time, right, with the help of MS Excel। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाकर मैं उसको फॉर्मेट कर देंगे ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेट यहाँ पे है, यहाँ पे अपने ये देखिए आगे। अब इस एनुअल सैलरी यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमें फाइंड करना है, ठीक। फाइंड कैसे करेंगे, सपोज हमने फाइंड कर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दिख रहे हैं यहाँ पे, फाइंड। क्या फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिखता है। ये सपोज हम सेलेक्ट किया हमने पूरी सैलरी को और हम लिखा फाइंड, फाइंड ऑप्शन आ गया। फाइंड में हमने लिखा अमित, अमित फाइंड। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका अमित पे कर्सर चला गया, ठीक है। हमने सिर्फ लिखना है सपोज 12,000 और फाइंड, तो देखिए आपको फाइंड दिख रहा है, दो जगह आपको फाइंड दिखे, 12,000 देखिए। आपने लिखा सिर्फ खाली शिव फाइंड, देखिए शिव, अब देखिए SHIV आपको टेक्स्ट में दिख रहा है, तो वहां पे दिख के आ रहा है, ठीक है ना। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ देखिए नीचे शिव आ रहा है, ठीक है। और भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है कि आपको किस सीट में मैच करना है, यहाँ पे क्लिक करिए शिव, ठीक है। और आपने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, तो शिव चाहिए आपको, फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड डेटा यू आर सर्चिंग फॉर, इस तरह से कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाय शीट, बाय रो, बाय फॉर्मूला यू कैन, ठीक है, यू कैन सी मेनी ऑप्शन हियर। अब फाइंड में अगर आपको चाहिए रवि, फाइंड सी, देखिए रवि आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ चाहिए कि आपके कहां पर डबल जीरो हैं या ट्रिपल जीरो हैं, फाइंड। सो देखिए जहां जहां पे ट्रिपल ट्रिपल जीरो होगा वो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फाइंड हो रहा है, ठीक है। क्लियर बेटा। इसके अलावा 4 टाइम जीरो है, तो देखिए कहीं भी 4 टाइम जीरो आ रहा है, देखिए जहां जहां 4 टाइम जीरो। 5 टाइम जीरो कहीं पर है, तो कहीं नहीं है, क्लियर। तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट योर इंफॉर्मेशन। अब रैप टेक्स्ट देखते हैं, रैप टेक्स्ट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लो मुझे एक ही कंटेंट में बहुत सारे टेक्स्ट लिखने हैं, तो लिखा सपोज दिस, सपोज मान लेते हैं कि हमें रैप टेक्स्ट कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं यहाँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई, अब सिंपल डेटा,
ठीक है। अब इस डेटा का जो साइज है इसको हम थोड़ा स्मॉल करते हैं, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं इस सेल के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, तो रैप टेक्स्ट में जाएंगे। देखिए अब इस सेल के अंदर ही है, इस तरह से आप रैप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन हो, यहाँ सेंटर में हो, ठीक है, सेंटर पे आ गया, ठीक है। सेल के अंदर ही डेटा आपका जाएगा, सेल के बाहर डेटा आपका नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। तो रैप टेक का ऑप्शन हमने बताया, मर्ज सेल बताया, आपको अलाइनमेंट बताया यहाँ पर, ठीक है, ओरिएंटेशन बताया मैंने आपको, ठीक। यहाँ से आपको कलर करना है, आप किसी भी स्पेसिफिक को कलर टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, आप कलर पे जाइए, ठीक है, आप किसी भी स्पेसिफिक कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। ओके बेटा। नो, इसके बाद जो हमें देखना है वो है हमारे डिफरेंट टैब्स अवेलेबल। जो यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से टैब्स पर, ठीक है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अपने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इन सभी टैब पर कुछ ना कुछ हमारे टूल्स अवेलेबल है। उन सभी, ये सभी टूल्स, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है। जैसे हमारा फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है, हमारा अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, जो करस्पॉन्डिंग टूल्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए। इंसर्ट में जो करस्पॉन्डिंग टूल होंगे टेबल से रिलेटेड वो यहाँ मिल जाएंगे टेबल में। इलस्ट्रेशन में मिलेंगे आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट आपको टेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है। उसमें चार्ट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स इन चार्ट ग्रुप। और बेटा इनको बोलते क्या, ये पूरा का पूरा टॉप, ये टॉप एरिया देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। ये पूरा रिबन होता है, इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, टाइटल बार मिलता है। अब टाइटल बार में बुक 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यू कैन सेव योर फाइल कंट्रोल प्लस एस एंड यू सेव योर फाइल इन योर स्पेसिफिक लोकेशन। सपोज माई रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर है, मैंने यहाँ लिखा माई डेटा, माई न्यू डेटा करके मैंने सेव कर, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे इस सेक्शन को बोलते हैं फॉर्मूला बार, और ये हमारा सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं नेम बार। इसको क्या बोला जाता है, नेम बार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं, रोज में एंड कॉलम्स में। तो चलो कॉलम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉलम में जाते हैं, अपने नंबर कॉलम नंबर ए में जाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ कितने कॉलम क्रिएटेड हैं। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल एंड राइट एरो, तो देखेंगे एक्स एफ डी इज माई लास्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस राइट एरो से, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो आप पहले वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक। उसे हाउ मेनी रिकॉर्ड वी कैन स्टोर इट इन वन सीट, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,48,576 रिकॉर्ड वी कैन मेंटेन हियर इन वन शीट, ओके। कंट्रोल प्लस अप एरो पे जाएंगे तो आपको पहले वाले रो पे रिकॉर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है बेटा। सो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे हम कोई रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, रिकॉर्ड को एनालिसिस कर सकते हैं। और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल में, जो कि हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में क्लास में हम देखेंगे, आने वाले क्लास में हम देखेंगे। आई होप you understand the concept of MS Excel and the tool available on it. Okay, student, thank you very much for watching it.